Now, I would like to request Dr. Bipin Kumar, who is a renowned columnist, writer, and national thinker, making significant contributions to Hindi literature and culture. He serves as the National General Secretary of the World Hindi Council, dedicated to the promotion of the Hindi language. Additionally, he works as an editor for various national newspapers, writing editorials on contemporary issues. Dr. Kumar is a patron of the Bihar Hindi Literary Conference in Patna and is currently the coordinator of successful international Hindi conferences both in India and abroad. For over 15 years, Dr. Kumar has been actively engaged in the service of Hindi literature and the national language, fulfilling various responsibilities at regional and national levels during numerous conferences. He has previously served as a member of the Book Selection Committee of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, and represented the Indian government at the 11th and 12th World Hindi Conferences in Mauritius and Fiji, respectively. Additionally, he has worked as a coordinator for international Hindi conferences in Vietnam, Thailand, and Cambodia. He is frequently invited as a guest lecturer in corporate offices and various ministries where he delivers lectures in Hindi. He also participates as a guest speaker in various programs on All India Radio and Doordarshan. In terms of cultural contribution, he is actively involved with organizations like the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad and the Rashtriya Swayamsevak Sangh. In the realm of social awareness, Dr. Kumar organizes seminars and workshops on topics such as Ayurveda, human rights, drug-free initiatives, consumer protection, and women's empowerment. His book, Hindi Aur Samaj, was published by the Indian Universities Association with the World Hindi Council. He has also authored other significant works like Sampurna Yoga and Mind Power Memory. For his remarkable contribution, Dr. Kumar has received numerous awards and honors, including entries in the Vietnam Book of Records and the India Book of Records, as well as the National Pride Award 2019, World Hindi Service Award 2017, and Dr. Ramdhare Singh Dinka Award 2005. His work symbolizes continuous progress and dedication to the upliftment of the Hindi language and literature. Let us welcome Dr. Bipin Kumar on the podium, please. Can we have a big round of applause, everyone? मंच पे मौजूद आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तेलंगाना के महामहिम राज्यपाल श्रीमान जिष्णुदेव वर्मा जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष रामकृष्ण मिशन आश्रम दिल्ली के सचिव स्वामी सर्वलोकानंद जी महाराज, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल के अध्यक्ष प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर सिस्टा बासु नड्डा जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अध्यक्ष भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल सेक्रेटरी श्री शांतमनु जी एवं सभागार में उपस्थित विभिन्न संस्थाओं से आए हुए प्रतिनिधिगण, आज मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि यहाँ पे कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग विश्वविद्यालयों से आप यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख है राज विद्या केंद्र, भारतीय योग संस्थान, MCD, CRPF, CISF, BSF, SSB और भारत सरकार के एवं अलग अलग राज्य सरकारों के प्रतिनिधिगण। बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है और सर्वप्रथम मैं इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष साधुवाद और आभार देना चाहूँगा, क्योंकि जब से उन्होंने अपना दायित्व संभाला, आयुष को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने आयुष को अलग मंत्रालय बनाया
और ऐसा करने से समस्त देशवासियों के मन में एक उत्साह का संचार हुआ, आशा का संचार हुआ। आयुष चिकित्सक, आयुष कर्मी इससे काफ़ी लाभान्वित हुए और मैं उन्हें इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपनी जो शिक्षा नीति बनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें भी इन सारी चीज़ों को काफ़ी, आयुष हो या ट्रेडिशनल मेडिसिन हो, आयुर्वेद, वास्तु, इस तरीके के जितने भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान हैं उनको बढ़ाने का काम किया। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आज इस मंच से मुझे काफ़ी खुशी का अनुभव हो रहा है कि जब 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है, हमारी इस विद्या को, हमारे इस विज्ञान को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही फक्र और गर्व का विषय है। और ऐसे समय में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में जब मैं महामहिम राज्यपाल जी से अनुरोध किया तो उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपना समय आपने निकाला है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, क्योंकि आयुष से महामहिम राज्यपाल महोदय को काफ़ी लगाव है। आयुष चिकित्सा कैसे बढ़े, भारतीय संस्कृति को कैसे ताकत मिले, कैसे संवर्धित हो, इसके लिए बहुत चिंता करते रहते हैं। आज इसी का कारण से जब मैंने इनसे अनुरोध किया तो इन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर आज यहाँ पे आप इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ा रहे हैं। और हमारे बीच जो मौजूद हैं स्वामी सर्वलोकानंद जी, जब जब भी इस मंच से आपको आमंत्रण जाता है, आयुष की बात होती है, धर्म और संस्कृति की बात होती है, आप हमेशा अपना सहर्ष समर्थन आप देते हैं। तो आज आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। डॉक्टर सिस्टाबस्ता नाडू जी, आप पेशे से एलोपैथ चिकित्सक हैं, लेकिन जब इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल की कोई भी कार्यक्रम होता है, अध्यक्ष के नाते आपका बहुत मार्गदर्शन मिलता है, बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि इनका मानना है कि सारी पद्धतियों को लेकर के हम ज़्यादा आयुष को बढ़ावा दे सकते हैं, विकास कर सकते हैं। जब हम इंटीग्रेटेड की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हम आयुर्वेद की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, यूनानी की बात करते हैं, सिद्धा की बात करते हैं, होम्योपैथ की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब सारी पद्धतियों को लेकर के। इसमें कोई शक नहीं है कि एलोपैथ काफ़ी विकसित है, काफ़ी एडवांस विज्ञान है और एलोपैथ में काफ़ी रिसर्च भी हुए हैं। तो उनसे सहयोग लेकर के, एलोपैथ के जो चिकित्सकों से सहयोग लेकर के हम ज़्यादा से ज़्यादा आयुष के क्षेत्र में भी कैसे रिसर्च करें, ताकि आयुष का जो नाम है, आयुष की जो ये स्वीकार्यता है, पूरे देश और दुनिया में बढ़ सके। तो आज मुझे काफ़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। इसकी तैयारी पिछले 6 महीने से चल रही थी और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि आप लोग अलग अलग संस्थाओं से यहाँ आए हैं और जब आप यहाँ से जाएंगे तो एक विशेष संदेश लेकर के जाएंगे, एक विशेष संकल्प के साथ जाएंगे, ताकि आप सब लोगों को मिल करके अपनी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसको बढ़ावा देना है। क्योंकि जितनी भी पद्धतियाँ हैं वो आपको निरोग बना सकती है, लेकिन आयुष की पद्धति जो है आपको स्वस्थ बनाती है। स्वस्थ होने के लिए आपको आयुष को अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से आए दिन, मैं तो एम्स में बराबर जाया करता हूँ, मेरे पास काफ़ी लोग पैरवी लेकर के आते हैं कि वहाँ पे नंबर नहीं लग रहा है, काफ़ी लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हैं। तो हमारे पास इतने डॉक्टर नहीं हैं जितने रोगी हैं। इसको लेकर के मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, अपनी जो चिकित्सा पद्धति है, उसकी जो ताकत है, उसे परिचय कराया जाए। अगर आप इससे परिचित होते हैं तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं सवेरे सवेरे अखबार खोलता हूँ तो ये खबर प्रथम पन्ने पर देखने को मिलती है, भाई ने भाई को मारा, बेटे ने बाप को मारा, बाप ने बेटे को मारा,
है ना, पति ने पत्नी को मारा, पत्नी ने पति को मारा, ऐसे आए दिन खबर आता रहता है। क्या इसका निराकरण और कहीं है? एक केवल और केवल आयुष इसका निराकरण कर सकता है। जब आपका मन शांत हो, जब आपका मन स्थिर हो, जैसे राज विद्या केंद्र से अभी श्री प्रेम रावत जी का आप संदेश सुन रहे थे, बताते हैं कि कैसे अपने आप को जानो, क्योंकि अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया की तमाम विद्याओं को सीख जाएं, है ना, तमाम विज्ञान को सीख जाएं, लेकिन अपने आप को अगर नहीं जानते हैं, अगर अपने आप को पहचानते नहीं हैं, तो आपका भला नहीं हो सकता है। और यही बात स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि देश के 33 करोड़ देवी देवताओं पर भी भरोसा हो जाए, लेकिन अपने आप पर भरोसा ना हो तो आपका कभी भला नहीं हो सकता है। अभी मैं आप लोगों को हर समय खुश और प्रसन्न रहने का टिप्स दूंगा। कौन सी ऐसी विद्या है, कौन सा ऐसा विज्ञान है जिसको जान करके आप हर समय खुश और प्रसन्न रह सकते हैं? आप में से कोई लोग बता सकते हैं? कौन? धन्यवाद। कौन, किसने बताया? धन्यवाद। क्योंकि जब तक अपने आप की जानकारी ना हो, अपने आप के बारे में आपको विशेष जानकारी ना हो, तब तक आप खुश नहीं रह सकते हैं, आप प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर में वो सारी क्षमताएं हैं जो आप अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहते हैं। तो आज ये 2 दिवसीय जो आयुष कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, इसका बहुत व्यापक उद्देश्य है। एक तो उद्देश्य है कि आयुष को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, एलोपैथ के सहयोग से हम आयुष को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आयुष के चिकित्सक भी आए हुए हैं। और उन आयुष चिकित्सकों से मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग रिसर्च पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपके इस विद्या को, आपके इस विज्ञान को पूरा देश और पूरा विश्व स्वीकार करेगा। क्योंकि आज जिस तरीके से मैं देखता हूँ, अलग अलग देशों में जाया करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि यहाँ की विद्या को, यहाँ के विज्ञान को, यहाँ के धर्म और यहाँ की संस्कृति को जिस तरीके से लोग एक श्रद्धा की नज़रों से देख रहे हैं, ऐसे समय में हम सब लोगों का मन प्रेरित होता है कि कुछ और कैसे करें। क्योंकि जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा विश्व भारत को योग गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा है, ऐसे समय में हम सब लोगों का भी दायित्व है कि हम सब लोग भी कुछ विशेष करें। अपने अपने क्षेत्र में जब हम विशेष करेंगे तो अपने देश का नाम ऊंचा होगा। तो ये जो आयोजन किया गया है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसका बहुत व्यापक उद्देश्य है, और आप लोगों से भी बहुत अपेक्षा है, क्योंकि इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल तभी अपने उद्देश्यों में सफल होगी जब आप सब लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, पिछले बार भी मैंने कहा था कि आप सब लोग आए हैं, मैं इसलिए आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि आपके संकल्प को बढ़ा सकूँ, आपके संकल्प को जागृत कर सकूँ। आप आते हैं, कार्यक्रम को लाभान्वित होते हैं, लेकिन इसको और कैसे इस कड़ी को मजबूत किया जा सके, इस पर कोई बात नहीं होती है। क्योंकि काउंसिल तो अपना काम कर रही है, लेकिन मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोग हैं सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सब लोगों के ऊपर में बहुत बड़ा दायित्व है, कैसे समाज को, कैसे राष्ट्र को स्वस्थ बनाया जा सके। इसके लिए आयुष जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मैं अरुणिमा सिन्हा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए काफ़ी कुछ प्रसारित करते रहती हैं, लोगों को स्वस्थ बनाते रहती हैं। श्री देशराज जी, जिनके हजारों लोग योग को कक्षाओं को संचालित करते रहते हैं। ऐसे आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि सभी रोगों के लिए दवा नहीं बनी है। आप सब लोगों को भी मालूम है, जो साइकोसोमेटिक डिजीज है उसको दवा के माध्यम से दूर नहीं किया जा सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी रोगों के लिए दवा नहीं बनी है। जैसे अभी हमने कहा कि अखबारों में बहुत सारी घटनाएं घट रही है, तो क्या इसके लिए कोई दवा बनी है क्या? जैसे मन शांत हो जाए, मन स्थिर हो जाए, लोग एक दूसरे के प्रति मानवता भरा व्यवहार करें, है ना, एक बहुत
आपसी लगाव रखे, प्यार रखे, प्रेम रखे। ये सब संभव है आयुष से, योग विद्या से, योग विज्ञान से, है ना। क्योंकि लाखों करोड़ का बजट स्वास्थ्य का है और एक अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य में जाता है। हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि कैसे हम आयुष को अपना करके उस बजट को कम कर सकें। क्योंकि महात्मा गांधी जी जब देश आज़ाद हुआ तब से गांव-गांव जा कर के नेचुरोपैथी का प्रचार करते थे, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का। क्योंकि एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसको अपना करके आप स्वस्थ हो सकते हैं, जिसका शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता है। क्योंकि हमारा देश बहुत सारा आबादी जो है गाँव में निवास करता है, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, इतने पैसे नहीं हैं कि वो आ करके शहर में उसका अपना उपचार करा सकें। ऐसे समय में इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल ने इस दायित्व को समझा कि कैसे उनके बीच जा करके आयुष का कैसे प्रचार किया जा सके, कैसे उनको स्वस्थ बनाया जा सके, बिना दवा का, केवल खान पान और जीवन शैली में बदलाव करके हम स्वस्थ हो सकते हैं। इंसान ही है जो अपने स्वस्थ होने के लिए दवा पे निर्भर करता है। जानवर जो है वो दवा नहीं खाता है, उपवास कर लेता है या जड़ी बूटियों का कुछ सेवन कर लेता है जिससे वो स्वस्थ हो जाता है। तो स्वस्थ होने के लिए आपके पास विधाता ने, इस परमपिता परमेश्वर ने, इस सृष्टि के रचयिता ने काफ़ी कुछ दिया है। केवल जानकारी का अभाव है। क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, है ना, कितना खाना चाहिए, अगर थोड़ी सी जानकारी हो जाए तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि 2 दिनों का ये जो सम्मेलन है, थोड़ी थोड़ी जानकारी भी अगर आप लोग लेकर के जाते हैं तो इसका जो उद्देश्य है ये सफल होगा। तो आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है और पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, ऐसे में हम सब लोगों को भी इस प्राकृतिक असंतुलन से कैसे बचाव हो, कैसे बचाव करना चाहिए, इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। जैसे गाड़ियों का कम उपयोग करें। आप जब बाज़ार जाते हैं, कुछ खरीदारी करते हैं तो अपने साथ बैग लेकर जाएं। मैं जब भी जाता हूँ तो अपने साथ कुछ रखता हूँ, है ना। अगर दुकानदार अगर कुछ पॉलीथीन देता है तो मैं उसको मना करता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए। तो जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है तो छोटे छोटे कार्यों से बड़ा बदलाव होता है, एक संकल्प के साथ बदलाव होता है। तो कहते हैं, श्री राम शर्माचार्य ने कहा है, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो अपने आप से बदलाव करना है, अपने आप से सुधार करना है। अपने आप जो है, ये देश जो है बहुत महान है, पूरी दुनिया आज इसको योग गुरु के रूप में स्वीकार कर रही है। आप सब लोगों के ऊपर बहुत महती दायित्व है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा देश में सम्मान बढ़े, ऐसा आप लोग को काम करना है। तो ये सम्मेलन में आप लोगों को संकल्प लेके जाना है। ये सम्मेलन इसलिए नहीं जानकारी किया गया है कि आपको ज्ञान ज्ञान देने के लिए नहीं किया गया है, ये आपके संकल्प को जागृत करने के लिए किया गया है, ताकि आप सब लोग इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल से जुड़ें, इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल से जुड़े रहें। यहाँ से बराबर आप लोगों को कुछ न कुछ नई चीज़ों को बताया जाएगा और एक बहुत बड़ा परिवार बनाना है, ताकि पूरे देश के लोग स्वस्थ हो सकें, पूरी दुनिया के लोग स्वस्थ हो सकें। आज इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल ने एक बहुत बड़ा पहल किया है आयुष नेटवर्क का, क्योंकि एक ऐसा नेटवर्क हो जहाँ पे समाज के लोग, देश के लोग वहाँ पे जा सकें और आयुष के बारे में सारी जानकारियाँ ले सकें। जहाँ पे आयुष विधा के डॉक्टर, चाहे वो आयुर्वेद से हों, चाहे वे योग से हों, यूनानी से हों, सब लोग उस प्लेटफॉर्म पे हैं, उस नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ पे आम जो जन है वो भी जनता जा कर के वहाँ से जुड़ सकती है और एक दूसरे से संवाद बिठा सकती है और संवाद के जरिए अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकती है। तो निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है और इसके लिए मैं मंच पे उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्रीमान जिष्णुदेव वर्मा जी को जितना धन्यवाद दिया जाए कम होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय निकाला और आयुष को समर्थन देने के लिए, आयुष को बढ़ावा देने के लिए, कैसे भारतीय संस्कृति को ताकत मिले, इसके लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं और आपको बहुत बहुत साधुवाद, आभार। मैं अभी हमारे बीच
CCRY के निदेशक जो आयुष मिनिस्ट्री के निदेशक हैं श्री राघवेंद्र राव जी आए हैं, उनका भी स्वागत है। क्योंकि जब भी इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल कोई भी काम करता है तो राघवेंद्र राव जी 2 कदम आगे बढ़ कर के सहयोग करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने आयुष के बारे में काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी कुछ समझा और 2 दिनों तक काफ़ी कुछ लाभान्वित होंगे, है ना। और इस संकल्प के साथ आप लोगों को लौटना है कि हम सब लोगों को मिल करके, क्योंकि अलग अलग काम करने से नहीं बात बनेगी, जब मिल के काम करेंगे, सारी पैथी के डॉक्टर एक साथ मिलेंगे, हम सारी पद्धतियों को सम्मान करते हैं, जब काम करेंगे तो चिकित्सा पद्धति उन्नत होगी, है ना। और तब जा कर के हम पूरे देश और पूरी दुनिया में एक मिसाल पेश कर सकते हैं, एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज का जो ये दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग लाभान्वित हों। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Dr. Bipin Kumar.